Welcome to all. I'm Professor Dr. Sandesh Wagh, Professor and Head Department of History, University of Mumbai, also the Chairman of Board of Studies in the History and Archaeology of University of Mumbai. I'll be speaking today on one of the important topic, and the topic is Dr. Babasaheb Ambedkar's role in the empowerment of scheduled caste and scheduled tribe through the Constitution of India. So when we are trying to understand this topic, we really need to know that Dr. Babasaheb Ambedkar has played a very important and decisive role in changing the life of the various depressed classes. The various depressed classes are there for thousands and thousands of years in India. Just to name few, scheduled caste, scheduled tribes are the different depressed classes in India. Women are also the depressed classes in India, and for them, constitutional safeguards have been given by Dr. Babasaheb Ambedkar. Other backward caste people also have got the constitutional safeguards because of the Dr. Babasaheb Ambedkar. Article 340 in the Constitution of India was incorporated by Dr. Babasaheb Ambedkar for the empowerment of the other backward caste. Again, we find that minorities are there, right from Article 29, 30, 31, 32, 33. Minorities have been empowered by constitutional articles, by constitutional safeguards because of Dr. Ambedkar. Apart from that, disabled are also having the constitutional safeguards. Children are also having the constitutional safeguards. Laborers also are given the constitutional safeguards. So here we understand that the different depressed classes, for example, scheduled caste, scheduled tribe, other backward caste, women, minorities, disabled, children, laborers, have given the constitutional safeguards, and it are given for what purpose? These are basically given for strengthening them and forming a social inclusive policy to a large extent. And how he has done so, he has incorporated the various articles in the Constitution of India. Because he was the chairman of the drafting committee of the Constitution of India, it was easy for him to do so. That time Dr. Ambedkar has incorporated these articles in the Constitution of India in the fundamental rights. And again, we find that the part 4 of the Constitution of India is directive principle of the state policy, where he has empowered the scheduled caste and scheduled tribe peoples, nominated tribe peoples, denotified tribe peoples, all the peoples, those who are depressed classes peoples to a large extent. Again, this empowerment, when we try to understand that, we need to understand this empowerment is in the terms of the judiciary also. Dr. Ambedkar was the first person at that juncture of time who vehemently said that judiciary should be independent. Right from 1928 to 2031, in the Bombay Legislative Assembly, the statement given by Dr. Babasaheb Ambedkar is absolutely important. And Dr. Babasaheb Ambedkar has made the judiciary separate, which was not so at that particular juncture of time. So when we try to understand Dr. Babasaheb Ambedkar's contribution to a larger extent, we need to know that Dr. Babasaheb Ambedkar has played a epoch-making role in the history of India. His concept of reservation is also important point. मैं यहाँ पे जो वक्तव्य कर रहा हूँ, वो वक्तव्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में संविधान में जो विविध अनुच्छेद है उनमें जो प्रावधान किया है उसके संदर्भ में यहाँ पे वक्तव्य करना चाहूँगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, और इसी नाते के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों में तथा भारतीय संविधान के भाग 4 में, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहते हैं, जिसे राज्य धोरण की निदेशक तत्व कहते हैं, उसमें न्याय व्यवस्था के संदर्भ में तथा आरक्षण की व्यवस्था के संदर्भ में आदि विभिन्न अनुच्छेदों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण योगदान किया है, जिसके वजह से इस देश के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े तबके के लोग, महिलाएं एवं इस देश के अल्पसंख्यक एवं इस देश के विकलांग एवं इस देश के बालक एवं इस देश के मजदूर,
इन सभी का सही मायने में सक्षमीकरण करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूलभूत अधिकारों के द्वारा तथा भारतीय संविधान के भाग 4 के राज्य धोरण के निदेशक तत्वों के द्वारा तथा न्याय व्यवस्था को विकसित करने के बाद तथा आरक्षण के धोरण का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो संवैधानिक प्रावधान है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उसकी वजह से मैं यहाँ पे कहूंगा कि इसके वजह से इनका सभी का यहाँ पे सक्षमीकरण हुआ। कोई भी व्यक्ति जो 130 करोड़ की भारत की आबादी है वो ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए कार्य किया। जबकि हम देखते हैं भारत के संविधान का जब हम मुआवजा करते हैं तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कार्य किया है वो कार्य अद्वितीय कार्य है। वो कार्य अद्वितीय इसीलिए है क्योंकि इस कार्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल एक जाति का, केवल एक समूह का विचार नहीं किया, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी लोगों का विचार किया जो लोग इस देश में सांस्कृतिक और राजकीय तथा धार्मिक तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण योगदान किया। जब हम ये सब बात देखते हैं तो हमें यह भी बात करना जरूरी है कि क्या भारत का संवैधानिक इतिहास है। फिर मैं इस मूल मुद्दे की तरफ जाऊंगा। यह भी समझना जरूरी है कि इस देश के अनुसूचित जाति और इस देश के अनुसूचित जनजाति के लोग यह समझ ले कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक बौद्ध समाज के लिए सीमित नहीं थे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, उन्होंने इस देश का संविधान लिखते वक्त जो प्रावधान किया है वो हर तबके के लोगों के लिए किया है। तो इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान क्या है और क्या नहीं है। जब हम देखते हैं इस देश का संवैधानिक इतिहास, तो इस देश के संवैधानिक इतिहास में हमें यह जानना जरूरी होता है, क्या जानना जरूरी है कि हमें यह जानना जरूरी है कि किस तरह से यह संवैधानिक इतिहास शुरुआत हुआ। तो हजारों साल से इस देश में राज्य व्यवस्था जो थी वो किंगशिप की तरफ से थी, जिसे राजेशाही कहते हैं। लेकिन इस देश में सही मायने में अगर किसी ने प्रजातंत्र लाया तो ब्रिटिशों ने लाया। हमें यह जानना चाहिए कि यह संवैधानिक इतिहास क्या है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान क्या है। फिर मैं इस असल मुद्दे पर आऊंगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। Basically, East India Company came to India for the purpose of trade and commerce, and Queen Elizabeth has given a contract to the East India Company that they will do the trade and commerce with India and some of the areas of the Southeast Asia for the initial period of the 15 years. This was the charter that was given by the Queen Elizabeth. And in 1669, the Iceland of Bombay was been assigned to them for the 10 sterling pounds. In the Arabian Seas, they were doing the trade and commerce. मूळ मुद्दा या ठिकाणी असा येतो की भारताच्या संविधानिक इतिहासाचा अभ्यास कुठून सुरुवात होतो हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे। मी अगदी मुळापासून मांडणी या ठिकाणी करत आहे। ईस्ट इंडिया कंपनी या देशामध्ये कशासाठी आली तर ती व्यापार उद्यम करण्यासाठी आली, आणि ज्यावेळेला ती आली त्यावेळेला क्वीन एलिझाबेथने त्यांना 10 स्टर्लिंग पाऊंड देऊन 1669चा जो काही चार्टर आहे त्या अन्वये त्यांना सांगितलं की तुम्ही या ठिकाणी व्यापार उद्यम करू शकतात, आणि त्या पद्धतीने यांचं गव्हर्नन्स सुरू झालं। त्याच्यानंतर आपण पाहतो की चार्टर ऑफ 1669 स्टार्टेड, and from then we find that the constitutional development have started. Then there is a charter of 1726, then there is a regulating act of 1773, then Pitt's India Act of 1784, the Charter Act of 1793 and 1813. They have given the additional charge or additional period of 20 years to this East India Company. And we find that the process of making the constitution in India can be traced back to the Charter of 1833. हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इस देश में संविधान का जो पहल है, इस देश में संविधान की पहल ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो 1833 का जो चार्टर था, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जिसे कहते हैं, उसके तहत इस देश में संविधान निर्मित की प्रक्रिया की जो है उसका एक जो अहम जो स्टेप है उस वक्त वहां पे आया था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि ब्रिटिश लोग इस देश में कानून लाने चालू किए। उन्होंने गवर्नर जनरल काउंसिल की स्थापना की, एग्जीक्यूटिव स्थापना की, और बाद में देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया, 1857 का रिवोल्ट आया, बाद में 1858 में द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस इन इंडिया आया, और 1909 में बहुत सारे रेगुलेशंस आए। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया 20 अगस्त 1917 को।
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश के संवैधानिक इतिहास में कहां पे रोल आता है, यह समझने के बाद में हमें यह समझना जरूरी है कि इस संवैधानिक प्रक्रिया में आरक्षण मिलना, इस संवैधानिक प्रक्रिया में मूलभूत अधिकार मिलना, इस संवैधानिक प्रक्रिया में राज्य धोरण के निर्देशक तत्व निर्देशित होना, इस संवैधानिक प्रक्रिया में जो लोग पिछड़े तबके के लोग हैं उन्हें मानवीय मूल्य मिलना, इक्वालिटी, फैटर्निटी, लिबर्टी के जैसे मूल्य मिलना, यह सब प्रक्रिया लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान। जबकि मैंने यहां पे कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे संवैधानिक तौर पर सुधारना लाने चालू किए थे। उन्होंने चार्टर्स लाए, उन्होंने एक्ट लाया, एक्ट ऑफ 1909 लाया, 20 अगस्त 1917 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन आया, 1919 का हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और उसके बाद में देखते हैं कि 1929 में साइमन कमीशन आया। उसके पहले हम देखते हैं कि 1919 में साउथ बोरो फ्रेंचाइज कमीशन आया, फिर 1933 में व्हाइट पेपर एक्ट, व्हाइट पेपर डिक्लेरेशन आया, फिर हम देखते हैं कि नवंबर 1934 में जॉइंट कमिटी आई, फिर हम देखते हैं कि 4 अगस्त 1935 में ये रॉयल कमीशन आया, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। यह सब बात हम जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि संवैधानिक प्रक्रिया इस देश में कार्यान्वित करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है, और उसी तरह पर हम देखते हैं कि इस देश में केवल संवैधानिक प्रक्रिया कार्यान्वित करना या संवैधानिक तौर पर प्रजातंत्र को विकसित करने का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में हम देखते हैं कि ब्रिटिशों को जाता है। लेकिन इस प्रजातंत्र में इस देश के पिछड़े तबके के लोगों को उनके संवैधानिक और न्यायिक अधिकार देने का सबसे बड़ा श्रेय और किसी को जाता है तो केवल और केवल एक ही आदमी को जाता है, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। यह मैं इसीलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर मेरा संशोधन है, तकरीबन 44 के आसपास किताब लिख चुका हूं। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर मेरा पीएचडी का प्रबंध है, उसे पुणे विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुका है। तो ये मैं संवैधानिक तौर पर या हाइपोथेसिस जो मेरा है मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, जो यूनिवर्सिटी को मैंने सबमिट कर चुका। हम जब देखते हैं इस संवैधानिक प्रक्रिया में 19 फरवरी 1945 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने ये कैबिनेट मिशन की अनाउंसमेंट की। कैबिनेट मिशन ने कहा कि ये यूनियन इंडिया फॉर्म होना चाहिए, और उसके तहत उन्होंने बहुत सारी बातें की। और बाद में हम देखते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट आया। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो कब आया कि 24 अगस्त 1946 को आया, और इस इंटरिम गवर्नमेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, असफ अली, शरद चंद्र बोस, जॉन मथाई सर, शफकत अहमद खान, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सैयद अली जहर, ये सब लोग थे। और उस वक्त एक अहम मसला था कि कौन इस देश का संविधान लिखेगा, और इस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 को, और ऑन द मिडनाइट ऑफ द 14th and 15th अगस्त इन टर्म्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 2 डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर कॉन्स्टिट्यूटेड। 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को 2 डोमिनियन स्टेट्स आए जो इंडिया और पाकिस्तान थे, और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण मसला आता है कि इस देश का संविधान, और इसी तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। मराठी में एक कहावत है, तुम्ही खाता त्या भाकरीवरती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची सही आहे। तुम्ही खाता त्या भाकरीवरती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची सही आहे म्हणजे काय आहे? म्हणजे याचा अर्थ असा की या देशाच्या संविधानामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, जनजाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, विशेष मागासवर्गीय प्रवर्ग यांना ज्या आरक्षणाचा फायदा मिळाला, यांना ज्या मूलभूत अधिकार मिळाले, यांना ज्या राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्वामध्ये मानवी अधिकार मिळाले, स्वतंत्र, समता, बंधुता मिळाले, आणि त्यामुळे 2 घास स्वाभिमानाने खायला मिळाले, म्हणून म्हणतात की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा तुम्ही खातात त्या भाकरीवरती आणि चपातीवरती सही आहे, हे म्हणण्याचं कारण हेच आहे। आणि मग हे समजत असताना साऊथ बोरो कमिशन पुढे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानिक प्रक्रियेमध्ये भूमिका घेतली 27 जानेवारी 1919 ला। अँड 27 जनवरी 1919 डॉक्टर अम्बेडकर हैज गिवन एविडेंस बिफोर द साउथ बोरो फ्रेंचाइज कमीशन। साइमन कमीशन के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जॉइंट इलेक्टोरेट्स के बारे में बात की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की, और उन्होंने इस देश के डिप्रेस क्लासेस के लिए एक स्कीम वहां पे सबमिट की थी। वो उसका नाम है स्कीम फॉर द पॉलिटिकल सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिप्रेस क्लासेस इन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्निंग इंडिया। मतलब स्वयं शासन जब आएगा, उस स्वयं शासन में भारत की संवैधानिक प्रक्रिया में इस देश के जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनके लिए
संविधानिक सक्षमीकरण करने के लिए जो मुद्दा था वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डाला। ज्वाइंट कमिटी 1933 मार्च 1933 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में कहा। क्रिप्स कमीशन 1942 मार्च में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनका निवेदन कहा। कैबिनेट मिशन के सामने 1946 में बाबा साहब अम्बेडकर ने उनका निवेदन दिया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जो की है कि इस देश के संविधान में क्या मूलभूत अधिकार होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1947 मार्च में एक मेमोरेंडम प्रिपेयर किया था जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तहत दिया गया था, सेफगार्ड्स फॉर द शेड्यूल कास्ट, जिसे हम स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के नाम से जाते हैं। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, व्हाट आर देयर राइट्स एंड हाउ टू सिक्योर देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकारों की रचना की है, वो मूलभूत अधिकारों की रचना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्रता के पहले ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात की पहल कर चुकी थी। और इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उनका जो निवेदन था वो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, वेयर आर देयर राइट्स, हाउ टू सिक्योर देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया, ये बात उन्होंने वहां पे की। मतलब बाबा साहब जानते हैं कि इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने वाली है। बाबा साहब मानते हैं कि इस देश में संविधान आने वाला है। बाबा साहब को यह भी मालूम है कि इस देश में प्रजातंत्र आने वाला है। और जब प्रजातंत्र आने वाला है तो केवल वो राजकीय प्रजातंत्र नहीं होना चाहिए, वो प्रजातंत्र सामाजिक प्रजातंत्र होना चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि प्रजातंत्र आने के पहले ही उन्होंने कहा कि भारत के भावी संविधान में हमारे मूलभूत अधिकार क्या रहेंगे इस पिछड़े देश के तबके के लोगों की। ये सबसे बड़ी बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की और वही बातों को, वही मुद्दों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भारतीय संविधान में लिए है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1947 को ये फ्रीडम प्राप्त करने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर हुए। उसके बाद में हम ट्रांसफर ऑफ पावर वगैरह ये सब बात हुई। जब संविधान लिखने की प्रक्रिया की बात आई तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस मसूदा समिति का अध्यक्ष किया गया। 141 डेज में ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहुत बड़ा काम किया। 10,500 से ज्यादा सवालों का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले ने सवाल दिया। और जब हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह संविधान लिखा तो प्रारंभ में उसमें 315 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। और इसके संदर्भ में टीटी कृष्णमाचारी ने बहुत बड़ी बात की। यह कहकर मैं अपने असल मुद्दे पर यहां पे आना चाहूंगा। टीटी कृष्णमाचारी ने कहा है, और वो सही मायने में संसद में, भवन में रिकॉर्डेड है, पंजीकृत है, यह दस्तावेज है कि केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा है। उनके साथ में जो सहयोगी साथी थे वो ये संविधान लिखने में असमर्थ थे विविध कारणों की वजह से। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बात की। What T.T. Krishnamacharya has said, which has been recorded in the Constituent Assembly. भारत की संविधान सभा में जिसे दस्त किया गया है वो टीटी कृष्णमाचारी के शब्द में यहां पे कहना चाहूंगा और असल मुद्दे पर आना चाहूंगा। What he says that I quote and unquote. The House is perhaps aware that the 7 nominated by you. The House is perhaps aware that the 7 nominated by you, one had resigned from the House. One had resigned from the House मतलब 7 लोगों में से एक मुद्दा, एक बंदा जिसने उसका रेजिग्नेशन दिया था, जिसने उसका राजीनामा दिया था, जिसने उसका इस्तीफा दिया था। One had resigned from the House and was replaced. One had died. दूसरा बंदा जो था उसका मृत्यु हो चुका था और उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था। एक बंदे ने इस्तीफा दे दिया, दूसरे बंदे का देहांत हो गया। One was away in the America. तीसरा बंदा जो था वो अमेरिका में था और उसकी जगह किसी ने नहीं ली थी। चौथा बंदा जो था वो चौथा बंदा स्टेट अफेयर्स में था तो वो काम नहीं कर पाता था, मतलब वो राज्य व्यवस्था में था, वो काम नहीं कर पा रहा था। और बाकी जो 2 बंदे थे, पांचवा और छठा बंदा जिसके बारे में 1 or 2 people away from Delhi and perhaps the reason of health did not permit them to attend। मतलब ये होता है कि जो व्हाट्सएप पे, जो फेसबुक पे, जो ट्विटर पे, जो सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, उनके साथी लोगों ने संविधान लिखा, यह बात साफ झूठ है। जो आपके सामने लाया जाता है वो सच नहीं होता। यह भी बात बहुत बार हो जाती है। लोग बाबा साहब अम्बेडकर अनुसूचित जाति के थे इसलिए उनको इस बात का श्रेय देना नहीं चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा है, लेकिन इस इतिहास में संविधान सभा में लिखा गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। और जो 7 नाम निर्देशित सदस्य थे
उसमें एक बंदे ने, उसके देहांत हो चुका था, दूसरे बंदे ने इस्तीफा दे दिया था, तीसरा बंदा अमेरिका में था, चौथा बंदा राज्य व्यवस्था के कार्य में था, और ये पांचवा और छठा बंदा जो था वो दिल्ली से दूर था, वो उसकी सेहत की वजह से वो काम नहीं करता। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के 315 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियों का लिखान किया। 10,500 सवालों का बाबा साहब अम्बेडकर ने यहां पे जवाब दिया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में जो कहा गया है, आर वेंकट रामन जी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही सेज दैट डॉक्टर अंबेडकर एंटिसिपेटेड एवरी कन्विंसिबल रिक्वायरमेंट फॉर द न्यू पॉलिटी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैड प्लेड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सेइंग दैट, he says that 2 important points. Dr. Ambedkar had played a very constructive role in the making of the constitution even before the election of the drafting committee. मतलब संविधान का मसूदा लिखने के पहले ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण काम किया है, जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटी के तहत पब्लिश हो चुका है। नो वन टू ग्रेटर ट्रबल्स एंड केयर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग देन डॉक्टर अम्बेडकर। इस देश का पंतप्रधान जब कहता है कि किसी ने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इतने कष्ट और किसी ने भी नहीं किए हैं, और किसी ने भी इस बात पर ऐतराज नहीं किया, इसका मतलब यह सच है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही यह सब काम किया है। यह आपको समझना काफी जरूरी है। संविधान प्रक्रिया में जो 10,500 के आसपास सवाल पूछे गए, उस प्रश्नों को पूछने वाले लोग अलग थे, लेकिन इस देश का मूलभूत अधिकार देने वाला, इस देश में संविधानिक प्रक्रिया में राज्य धोरण की निर्देशक तत्व लाने वाला, इस देश में न्याय व्यवस्था लाने वाला, इस देश में राज्य व्यवस्था लाने वाला, इस देश में आरक्षण की व्यवस्था लाने वाला केवल एक और एक महामानव था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर था। किसी भी बंदे की उतनी ताकत नहीं थी कि जो संविधान लिख पाए। और यह भी कहा जाता है कि संविधान जो है वो संविधान अलग है। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी का कॉपी किया, कैसे कॉपी करेंगे? सवाल यह भी है, कैसे कॉपी करेंगे भाइयों? इस देश में 130 करोड़ की आबादी को मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश में जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, चातुर्वर्ण, गुलामगिरी, वेड़ बिगारी, सती प्रथा, बहुविवाह पद्धति, बहुपत्नीकत्व पद्धति, यह जो सिस्टम्स है, यह सिस्टम्स इस दुनिया में कहीं भी नहीं, जो केवल भारत और भारत में है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आर्टिकल 14 लाना, 15 लाना पड़ा, 16 लाना पड़ा, 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लाना। क्या रूस के संविधान में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है? क्या अमेरिका के संविधान में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है? अस्पृश्यता निवारण के संदर्भ में क्या रूस के संविधान में, अमेरिका के संविधान में, इंग्लैंड के संविधान में, स्विट्जरलैंड के संविधान में प्रावधान है? नहीं है, क्योंकि वहां पर अस्पृश्यता नहीं है। इसलिए यह बात जो सरासर जो लोग कहते हैं वो सब गलत है, और यह समझना जरूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो भारत की सामाजिक न्याय व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए लिखा है। When we try to go and understand, we need to understand that Dr. Baba Saheb Ambedkar's contribution in the Constitution of India is absolutely important. मैं कहना चाहूंगा कि कितने अमेंडमेंट आए। The total number of amendment to the draft constitution table were approximately 7,635. 7,635 अमेंडमेंट आए यहां पर। The total number of amendment actually moved in the house were 2,473. यह जब बात मैं कहता हूं तो मेरे पास में इस देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान। अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में मैं यहां पे बात करना चाहूंगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश का संविधान का प्रास्ताविक सबसे महत्वपूर्ण, यह इंपॉर्टेंट है, वो जानना जरूरी है। मैं यहां पे कोट अनकोट करना चाहूंगा। What does the preamble of the Constitution of India says? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, democratic republic and secure to it all the citizens justice, social, economic and political. Was there a social, economic and political justice in India? No, never it was. It wasn't there for the thousands and thousands of years. The peoples were living on the outskirts of the villages. At this juncture of time, Dr. Ambedkar rose as a national leader and said that equality, liberty and justice, fraternity are the basic fundamental rights of the human beings. So the Constitution of India's preamble says that the justice, social, economic and political is assured to all the citizens of India. Further, it goes to say that liberty of thoughts, expressions, beliefs, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity assuring the dignity of the individuals and the unity of the nation is been assured to all the peoples. So therefore, we need to understand that the Constitution of India is a unique constitution for an underdeveloped country like India. See, we try to understand the Constitution of Pakistan, we try to understand the Constitution of Bangladesh and the Constitution of Nepal
And then we try to understand the Constitution of India, and then we try to understand the development of India in comparison with this neighboring countries, then we understand we are far ahead them because of the Constitution of India. And the credit goes to Dr. Babasaheb Ambedkar, nobody else, because it's the most formidable and important documents in the Constitution is an important point. So here I would like to submit over here that the feature of the constitutions are sovereign, socialist, secular, democratic and republic. मतलब क्या है? सार्वभौम, समाजवादी, सर्वधर्म समभाववादी, प्रजातंत्र और प्रतिनिधित्व देने वाला इस तरह का भारत का संविधान है, जिसमें इस देश के संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, भातृभाव को प्रमोट किया गया है और इस देश में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मूलभूत अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हैं। ये देने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। जितने भी पिछड़े तबके के लोग आज, जो महिलाएं जिनको आज आप देखते हैं कि इनको इन सबसे बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जो भारत का संविधान है, जो महिलाओं का उत्थान हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आर्टिकल 12 is an important point. What does it say? In this part, the unless the context otherwise, what does it say? It says that the earlier rules and laws have gone. And then we find that various articles given for the women's by Dr. Ambedkar, Article 14 is there, Article 15, Article 15.1 is there, Article 15.3 is there for the women's, Article 15.4 is there, Article 16 is there, Article 16.4 is there, Article 39A is there, Article 39B is there, Article 39C is there for the women's, 39D is there, 39F is there, Article 42 जो है सबसे बड़ा contribution डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, provision for the just and human conditions for the work and maternity relief for the women's. The state shall make a provision for the securing just and human conditions of work and maternity relief. प्रसूति पूर्व, प्रसूति और प्रसूति पश्चात कालखंड में महिलाओं को जो भरपगारी रजा मिलती है, किसके वजह से मिलती है? भारत के महिलाओं को। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। यह समझना काफी जरूरी है। जब यह समझ में आएगा तब उनको समझ में आएगा कि उनका उत्थान केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब अम्बेडकर ने की हुई संवैधानिक तरतूदों की अनुच्छेदों की वजह से हुई। आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 51, 243D3, 243D4, ये सब क्या है? 243T क्या है? ये सब है महिलाओं के संदर्भ में, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत महिलाओं को इस देश में मिला। असल मुद्दे पर मैं यहां पे आना चाहूंगा कि इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने सक्षम कैसे किया? हाउ डिड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेड दिस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब and the backward caste people as empowered people on the level of the constitution? See, he said at once upon a time, there is one man, one vote in the political democracy. There is one man, one vote in the political democracy, but there is a requirement of what? There is a requirement of one man, one vote and one value. Because in Indian scenario, one man, one vote, one value cannot exist, because caste system, untouchability, bonded labor and slavery is there in India for thousands and thousands of years. That's why the scheduled castes were living on the outskirts of the villages. They were not having the right to fetch the water from the common places. They were not having right to education. They were not having the right to earn the money. Even the shadows of the untouchable persons pollute the land in India for thousands and thousands of years. This pollution of land, this humiliation, this discrimination, this exploitation has been ended by Dr. Ambedkar in the Constitution of India by the constitutional articles. It's an humble submission to understand. Don't confine Dr. Ambedkar to Buddhists. Don't confine Dr. Ambedkar to scheduled caste. Understand Dr. Ambedkar as the father of Constitution of India. Understand Dr. Babasaheb Ambedkar, who has empowered you. Understand Dr. Babasaheb Ambedkar as what? As a father of human rights movement in India. I have written 44 books and I have written one book on the social conditions in the 19th century. I have said that Raja Rammohun Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Mahadev Govind Ranade are the upper caste social reformers. They were confined up to the social reformation as far as the upper caste movement was considered. They never had taken the issues of the scheduled caste, scheduled tribe. And where Dr. Ambedkar was standing, where he has not thought about his caste, he has empowered and enabled all the peoples and given the rights in the Constitution of India. So we talk about the 15.4. What does that say that?
Nothing in this article in the clause 2 of the Article 29 shall prevent the state from making any special provision. अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में भारत के संविधान में जो 15(4) आर्टिकल अनुच्छेद है, उसमें क्या प्रावधान है? उसमें प्रावधान यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत उन्होंने कहा है कि state will not be prevented for making any special provision for the advancement of socially and educationally backward class citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes. इसका मतलब यह होता है कि इस देश के अनुसूचित जनजाति जाति के लोग, पिछड़े तबके के लोग, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके प्रगति के लिए प्रावधान किया जाएगा और स्टेट के या राज्य व्यवस्था को, केंद्र को या राज्य को इसके लिए कोई भी रोक नहीं सकता। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज महाराष्ट्र में हमारे मराठा बांधव इस आरक्षण के एम्बिट में आ चुके हैं। वो किसकी वजह से आए? वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आए। जो आरक्षण जो मिल रहा है, वो आरक्षण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, आर्टिकल 15(4) की देन है, 16 की देन है, 17 की देन है। बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको समझाऊंगा क्या क्या है। हमें यह समझना जरूरी है, द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस बैकवर्ड कास्ट पीपल्स इज बीन डन बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द आर्टिकल्स दैट आर देयर। क्यों किया बाबा साहब अम्बेडकर ने ये? मैंने पूरे विश्व का अध्ययन किया है, इतिहास का प्राध्यापक हूं, 44 किताब लिखे, विश्व का इतिहास, कंटेम्परेरी वर्ल्ड देखा है, लिखा है, एशिया का इतिहास लिखा है, भारत का इतिहास लिखा, मध्ययुगीन प्राचीन भारत, आधुनिक भारत का इतिहास लिखा है। और मैंने ये जाना है कि जो सिस्टम इस देश में थी, उस सिस्टम की वजह से इस देश के पिछड़े तबके के लोगों को 3,500 सालों से, हजारों सालों से वंचित रखा गया उनके मानवीय अधिकारों से, उनके सामाजिक अधिकारों से। और उसके वजह से उनका सक्षमीकरण करना जरूरी था, जिसे हम सोशल इंक्लूसिव पॉलिसी कहते हैं। और यह बात भी मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि आरक्षण की व्यवस्था केवल भारत में ऐसे नहीं, 29 देशों में आरक्षण की व्यवस्था है, जो भारत में आरक्षण आने के पहले ही थी। जैसे हम निग्रो के लिए वहां पे देखते हैं, जिसे रिजर्वेशन नहीं कहा जाता है, जिसे अफर्मेटिव पॉलिसी कहा जाता है। बहुत सारे देशों में, 29 देशों में आरक्षण की व्यवस्था है, जिसे अलग अलग नाम दिया गया है। लेकिन हम मानते हैं कि केवल भारत में आरक्षण, ये बात सबसे गलत है। आप विश्व का इतिहास पढ़ो, सामाजिक सक्षमीकरण के धोरण को पढ़ो, और आप बाद में आपको पता चलेगा कि सामाजिक सक्षमीकरण की भूमिका क्या है। आर्टिकल 16(4) एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? संधि की समानता। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन द मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट्स टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब यह होता है कि राज्य के अंतर्गत जो सार्वजनिक सेवा योजना रहती है, उस सार्वजनिक सेवा योजना में इस देश का कोई भी नागरिक होगा, उस नागरिक को वहां पे काम करने का समान अवसर मिलना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या इस देश में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी था? नहीं था। यह इंपॉर्टेंट बात है। बाद में यहां पे कहा गया, नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट और एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। इस देश की चातुर्वर्ण व्यवस्था की वजह से सार्वजनिक सेवा योजना में इस देश के पिछड़े तबके के लोगों को कोई भी स्थान नहीं था। अनुसूचित जाति जनजाति का बंदा, पिछड़े वर्ग का बंदा, वो जिस जाति में जन्म में आता है उस जाति का उसको व्यवसाय करना पड़ता था। इस देश का यह मानक था। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की चातुर्वर्ण व्यवस्था को, जो इस देश में वेदों में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो 10वां अध्याय है, जिसे हम पुरुष सूक्त कहते हैं, जिसके तरह से इस देश में चातुर्वर्ण व्यवस्था है, उस चातुर्वर्ण व्यवस्था को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 16(4) के तहत तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया और सबको समान अवसर दे दिया। यह सबसे बड़ी बात डॉक्टर अम्बेडकर ने की। वरना जिस जाति में पैदा होते उस जाति का व्यवसाय करना पड़ता है, यह खत्म करने वाला बंदा और कोई नहीं है दोस्तों, केवल बाबा साहब अम्बेडकर। यह समझना जरूरी। जो लोग सोच रहे बाबा साहब अम्बेडकर केवल अनुसूचित जाति के हैं, उनकी धारणा गलत है।
आप अनुसूचित जनजाति के, आप भटके मुक्त समाज के, घुमंतु जनजाति के, आपको आरक्षण का फायदा मिल रहा है। इतर मागास वर्गीय, आप पिछड़े वर्ग के, आपको आरक्षण का फायदा मिल रहा है। आप महिला है, आपको आरक्षण का फायदा मिल रहा है। आपको आर्टिकल 42 के तहत के फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तब आपको यह समझ में आना जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जब लिखा तो केवल अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं लिखा, तो इन्होंने इस देश के नागरिकों के लिए लिखा है। क्या कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस देश का हर एक नागरिक, उसे समान अवसर मिलेगा सार्वजनिक सेवा योजना में, और उस वक्त वो कहते हैं कि उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और भेदभाव किस ग्राउंड्स पे कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जन्मस्थली के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जहां पर वो रहता है उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्या बाबा साहब अम्बेडकर केवल अनुसूचित जाति के संदर्भ में बात करते? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जब बात करते हैं तो सबके बारे में बात करते हो, कहते हैं कि धार्मिक भेदभाव नहीं होगा, वांशिक भेदभाव नहीं होगा, जातीय भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, महिला है पुरुष है उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जन्मस्थली के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जहां पे वो रहते हैं उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और सबको इस देश के सार्वजनिक योजना में समान संधि, समान अवसर मिलेगा। यह सबसे बड़ी देन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है कि आज सार्वजनिक सेवा योजना में इस देश के बहुजन समाज के लोग काम कर रहे हैं। उनके हर एक निवाले पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिखा गया है दोस्तों, आर्टिकल 64 के तहत। जब आप एक निवाला खाओगे, जो इस आरक्षण की व्यवस्था के लाभकारी लोग हैं, तो निवाला लेते वक्त आप बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना मत भूलो, क्योंकि हजारों साल से इस देश में चातुर्वर्ण व्यवस्था की वजह से, जाति व्यवस्था की वजह से, अस्पृश्यता व्यवस्था की वजह से आपको सार्वजनिक सेवा योजना से दूर किया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको सार्वजनिक सेवा योजना में समान अवसर, समान संधि दी, और उसके लिए मैंडेटरी कर दिया उन्होंने स्टेट के लिए और सेंट्रल के लिए कि इस आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। यह महत्वपूर्ण बात है, यह भी समझना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर इस अनुसूचित जाति के इस प्रवर्ग के थे, हमारे प्रवर्ग के लोग ने ऐसा किया, उनके प्रवर्ग। अरे आप ये समझने की कोशिश करो कि इस समाज सुधारना की मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने काम किया है, लेकिन समाज व्यवस्था को बदलने का, समाज व्यवस्था में, प्रजातंत्र में सामाजिक प्रजातंत्र लाने का काम, संवैधानिक तौर पर आपके न्यायिक अधिकार देने का काम केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। क्या SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 केवल अनुसूचित जाति के एक पिछड़े जाति के बाबा साहब अम्बेडकर जिस समाज से रिलेटेड उनके लिए नहीं है, सबके लिए। महाराष्ट्र में 59 कास्ट के लिए वो है, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी है। तो इसे हमें समझना जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान किया था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में बाबा साहब कहते हैं abolition of untouchability is abolished and its practice and in form is forbidden. The enforcement of disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. मैं बताता हूं आपको क्या है। शायद आप सोचेंगे सर बहुत फास्ट बोले, नहीं बताता हूं क्या है। इस देश में अस्पृश्यता व्यवस्था के तहत छुआछूत की व्यवस्था निर्माण, और छुआछूत की व्यवस्था की वजह से जो अछूत है, जिनका स्पर्श नहीं चलता, इन लोगों के ऊपर अन्याय होना चालू हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यहां पे कहा है कि कोई भी अगर छुआछूत करता है तो कानूनन वो जुर्म होगा, ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। क्या इस देश का आपस्तंभ धर्मसूत्र में, गौतम धर्मसूत्र में, नारद स्मृति में, विष्णु स्मृति में, मनुस्मृति में, जो इस देश की न्याय व्यवस्था हजारों साल से चलती आ रही थी, क्या उस न्याय व्यवस्था में लिखा गया है कि छुआछूत पालने यह अन्यायकारी है? नहीं लिखा गया दोस्तों, क्योंकि वो छुआछूत करके लोगों को अन्याय करना चाहते थे, जो इस देश की हुक्मरान समाज था। इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, नागवंश के लोग, द्रविड़ वंश के लोग, जिसके बारे में अवंतिका प्रसाद मरमट ने कहा है, HL कोसारे ने कहा, जिसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये हुक्मरान लोग थे। इन हुक्मरान लोगों को हराकर इन लोगों ने
पिछड़े तबके में डाल दिया और वो आर्यों ने उनका प्रावधान कर दिया चतुर्ण व्यवस्था की वजह से और इन्हें हम गुलामी ला दिया। ये हजारों सालों की छुआछूत की व्यवस्था एक ही झटके में बाबा साहब अम्बेडकर ने खत्म कर दी। इतना बड़ा काम इस देश की व्यवस्था में किसी ने नहीं किया जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, किसी ने भी नहीं किया। मैं लिख के देता हूं। Untouchability is abolished and its practice from any form is forbidden. Article 17. The informants of the disability arising out of the untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. There are two important legislations relating to this article direct to the protection of the Civil Rights Act 1955, Scheduled Caste and Scheduled Tribes. ये अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 आया कहां से? ये शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 आया कहां से? ये 2015 का अमेंडमेंट आया कहां से? ये 2016 का अमेंडमेंट आया कहां से? ये बाबा साहब के बदौलत आया दोस्तों, और किसी की वजह से नहीं आया। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि 7 लोग जो संविधान सभा में नाम निर्देशित, वो 6 लोग वहां पे काम ही नहीं कर पाए, केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। यह सबसे बड़ी बात है जो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि उन्होंने इस देश की छुआछूत की व्यवस्था को खत्म कर दिया। गळ्यामध्ये गाडगं, कमरेला केरसुनी आणि पायामध्ये काळा दोरा घालून, फाटके कपडे घालून फिरणाऱ्या माणसांना माणूस करणारा एक माणूस म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। या देशामधली हजारो वर्षाची अस्पृश्यता मिटवणारा एक माणूस म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। म्हणून आंबेडकरांच्या संदर्भात म्हणतात अरुण कांबळे त्यांच्या कवितेमध्ये की आज माझा प्रत्येक शब्द आभाळ झालाय, मी पडून होतो, चढून होतो, कुडून होतो, इतक्यांदा अर्थच नव्हता माझ्या शब्दांना। माझा शब्द कोणाडात पडलेला, कधी मधी वापरला जायचा तो वापरला जायचा अधूनमधून पोताऱ्यासारखा। आज माझा प्रत्येक शब्द आभाळ झालाय, मी पडून होतो, चढून होतो, कुडून होतो, इतक्यांदा अर्थच नव्हता माझ्या शब्दांना। ये अनटचेबिलिटी जो इस देश की व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा स्टिग्मा, सबसे बड़ा कलंक था, उसे बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 17 के तहत एक ही झटके में खत्म कर दिया। इसीलिए मैं दूसरी बार यही कहना चाहूंगा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सार्वजनिक सेवा योजना में कार्यरत है और जिनके ऊपर अन्याय होता है, तो वो न्याय मांगने के लिए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, 1955 सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट में न्याय मांग सकते हैं। वो केवल और केवल आर्टिकल 17 की वजह से। ये आपको समझना जरूरी, क्योंकि भारत के संविधान में जो अनुच्छेद है, जो मूलभूत अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये मैंडेटरी है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के लिए। उसके वजह से ये एक्ट आ सकते। हर एक निवाले पे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हर एक निवाला बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज की तारीख में मैं कहना चाहूंगा, डंके के चोट पर हम ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से इस देश की छुआछूत खत्म हुई है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 का प्रावधान किया। Whereas we go further to understand आर्टिकल 23, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्या कहते हैं? जय भीम, जय मूल निवासी। यह आर्टिकल 23 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। अभी आप सोचेंगे सर क्या अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। बहुत दिक्कत होती है मराठी में, अंग्रेजी में और तीनों भाषाओं में, हिंदी में बात करना, लेकिन वो कोशिश कर रहा हो कि ताकि हमारी बात सब लोगों तक पहुंच जाए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। मकसद तो यह है कि सूरत बदली जाए, लोगों को उनके हक समझ में आने चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को समझना चाहिए। Article 23 is about the prohibition of trafficking in the human beings and the forced labor. It talks about two important points. One is trafficking in human beings and beggar and other similar forms of the forced labors are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offense and punishable in accordance with the law. क्या है ये? बताता हूं मैं आपको। इस देश में जो धर्म मार्तंड लोग थे, इन धर्म मार्तंड लोगों ने इस देश की महिलाओं का, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े तबके की महिलाओं का शोषण करने के लिए यल्लमा पद्धति, देवदासी पद्धति, इस देश में मुरली पद्धति, ऐसे अनेक पद्धतियों का विकास और उद्गम किया, और उसके तहत इन महिलाओं का शोषण किया गया, शारीरिक शोषण किया गया।
कहा जाता है कि बालों में अगर नॉट आ जाती है तो देव ने उसे कहा कि इससे साथ मेरा शादी होना चाहिए और ये भगवान को अर्पित की जानी चाहिए। ये ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग है। ये ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग अव्यवसाय में महिलाओं को डालना धर्म के आधार पर, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक नियमों के आधार पर, जिसे हम यल्लम्मा, देवदासी, जोगतिनी, मुरली पद्धति कहते हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसे खत्म करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। आज भी हम देखते हैं कि संगति में महिलाओं को भगवान के नाम से यल्लम्मा करके छोड़ा जाता है और वो शादी नहीं कर सकती और उनका यौन शोषण होता है अपर कास्ट के लोगों के माध्यम से। वो पनिशेबल अकॉर्डिंग टू लॉ है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। ये पनिशेबल अकॉर्डिंग टू लॉ करने का काम कौन कर सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर ही कर सकते हैं। कौन कह जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखते वक्त किसी और देश के संविधान का कॉपी किया? सरासर झूठ, सरासर झूठ है, क्योंकि इस देश में ही केवल यल्लम्मा, देवदासी, जोगतिनी, मुरली सिस्टम थी, जिसे ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग कहते हैं, वो केवल भारत में थी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को आर्टिकल 33 में प्रावधान करना पड़ा और बोलना पड़ा कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर्स। यह सबसे बड़ा विजन जो है बाबा साहब अम्बेडकर का, ये महिलाओं का सक्षमीकरण करना, अनुसूचित जनजाति के लोगों का सक्षमीकरण करने के तहत बाबा साहब अम्बेडकर। फिर और एक बात कही गई कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम imposing compulsory services for the public purposes, and in imposing such services the state shall not make any discrimination on the ground of religion, race, caste, place and sex any प्रस्तुत। ये ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग जो आया है भाई साहब, ये केवल भारत के संविधान का अनुच्छेद नहीं है, तो अधिनियम बनाए गए हैं, अधिनियम जो आज से किसी ने नहीं बनाए। हम कहते हैं राजा राममोहन रॉय ने बहुत बड़ा काम किया, सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया, विलियम बेंटिक ने वहां पे अधिनियम लाया, कायदा लाया। क्या हम ये कहते हैं कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 आया, बाबा साहब अम्बेडकर के तहत वजह से आया? क्या इस देश के स्त्रीवादी इतिहास को लिखते वक्त स्त्रीवादी इतिहासकार, इस देश के वंचितवादी इतिहासकार जिसे सबाल्टर्न हिस्टोरियन कहते, क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर लिखते? नहीं लिखते, क्योंकि उनकी जाति वहां पर, उनका सर्वश्रेष्ठत्व वहां पर आ जाता है। द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, द बॉन्डेड लेबर सिस्टम्स एबोलिशन एक्ट 1976 has come because of Dr. Baba Saheb Ambedkar. The state takes up the relief works such as famine, flood relief because of Dr. Baba Saheb Ambedkar. This is an important point, this is an important submission that I am making, that the articles that are incorporated in the fundamental rights by Dr. Ambedkar are not only the articles, but they are the base of the acts of the Civil Rights Protection of 1955, Scheduled Caste Scheduled Rights Prevention of Atrocities Act 1989, 1995, 2015, 2016, and amendments thereof. Then you got the Immoral Traffic Prevention of 1956, the Bonded Labor System Abolition Act 1976. ये सब बातें जो है, ये सब बातें, ये सब मसला कहाँ से आता है? ये आता है बाबा साहब अम्बेडकर से। वो केवल एक व्यक्ति नहीं, वो विचारधारा है, जीवन का आधार है, जीवन की आधारशिला है बाबा साहब अम्बेडकर। और भारत के संविधान में उन्होंने किया हुआ, संविधान में किया हुआ प्राविधान, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट देन बाबा साहब अम्बेडकर ने की। आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस इन द फैक्ट्रीज। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का विचार नहीं करते, तो बाबा साहब अम्बेडकर सब शोषित पीड़ित लोगों का विचार करते हैं, हर एक विचारधारा का विचार करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो छोटे बालक हैं उन्हें बाल मजूरी की नहीं चाहिए। बाल मजूरी एक व्यवस्था है, चाइल्ड लेबर जिसे कहते हैं, इसके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस इन द फैक्ट्रीज इज नॉट अलाउड। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. Because क्यों है ये करने का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी की वजह से, भूखमरी की वजह से बच्चों को पढ़ाई नहीं करने देते, फैक्ट्री में काम लगवाते, माइंस में काम लगाते,
हैजार्डस काम करवाने लगा थे। और इस वक्त इस बात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जान लिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। We need to understand that the articles that are incorporated in the Constitution of India are the basis of the acts that are there in the course of time. I have already said the Article 7 is the base for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes Prohibitions of Atrocities Act 1989, and then we find that Article 64 and thereof the articles arose that are base of various articles, and Article 24 is also the base of one, the Child Rights, the Child Labor Prohibition and Regulation Act that was 1986. ये सब किसके वजह से आया? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, और किसी वजह से नहीं है। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन में कहते रहे, भाई बाबा साहब अम्बेडकर कहां पे थे? इसको समझने के लिए आपके भारत के संविधान के संवैधानिक इतिहास को आपने पढ़ा है क्या? क्या आपने इस गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को भावी संविधान में क्या मूलभूत अधिकार देने चाहिए, इसलिए कितने सब कमेटियों पर काम किया, इसके बारे में आपको मालूम है? ब्रिटिशों को बोलने वाले बाबा साहब थे कि आप इस देश के चले जाओ और हमें इस देश में संविधान में इस तरह से अधिकार देने चाहिए, इसलिए स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज लेकर, क्या इसके बारे में आपको मालूमात है? नहीं है। कुछ भी बात करना, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कुछ भी पोस्ट डालना, यह गलत बात है। समझ में आना चाहिए कि किसने क्या किया। हर एक निवाला जो आप खा रहे हैं, भारतीय संविधान के जो आरक्षण के तहत जो लाभान्वित व्यक्ति है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के आभारी होने चाहिए। आर्टिकल 25, व्हाट डज दैट से? आर्टिकल 25B अमेंडमेंट्स भी आए, लेकिन इसका बेस क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर थे। प्रोवाइडिंग फॉर द सोशल वेलफेयर एंड द रिफॉर्म्स और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल द क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। सो the explanation goes on talking, this article provides that the Hindu religious institutions of a public character shall be open to all the classes and sections of the Hindus. The term Hindu includes the persons professing the Sikh, Jain or Buddhist religions. This is provision relevant to the some sects of the Hindus used to claim that the members belonging to the SC/ST had no right to enter in the temples. बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 में जो नासिक कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया था, वो छोड़ दिया। वो छोड़ इसीलिए दिया था डॉक्टर अम्बेडकर ने क्योंकि मंदिर का प्रवेश उनको कतई प्राप्त नहीं हुआ। जब मंदिर प्रवेश बिल वहां पे लाया गया था, विधेयक आया था, फिर भी उनको प्रवेश नहीं किया गया। बाबा साहब उसने कहा था, आम्हाला या देशाच्या मंदिरामध्ये जाऊन देवाचं दर्शन घ्यायचं नाही तर आम्हाला आमचे मूलभूत अधिकार प्राप्त होतात की नाही हे आम्हाला लोकांना समजून सांगायचं, यासाठी आम्हाला मंदिरामध्ये जायचं। मंदिर प्रवेश विधेयक आल्यानंतर देखील लोकांना हे अधिकार मिळाले नाहीत, म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताच्या संविधानामध्ये जे प्रावधान केलं त्या प्रावधानाच्यामुळेच आर्टिकल 25B आले, त्याच्यामुळे सांगितलं की या देशामधल्या हिंदूंच्या मंदिरामध्ये अनुसूचित जाती जनजातीच्या लोकांना येण्याचा, मागासवर्गीय सर्व लोकांना येण्याचा अधिकार है। हम किसी को रोक नहीं सकते क्योंकि भारत के संविधान में इसका प्रावधान किया गया। ना तोप निकालो ना तलवार निकालो, जब कलम मुकाबिल है तो अखबार निकालो। और आगे जाके मैं ये कहूंगा कि संविधान पढ़ लो, सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा आपकी जिंदगी में। इंसान को मुकम्मल स्तर पर लाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। Article 46, I'll be taking some of the few articles and I'll stop right now. Article 46 talks about the promotion of educational and economic interests of the scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections. अभी ये मसला होगा कि क्या बात कर रहे हैं सर, संविधान बता रहे हैं। अरे भाई मैं संविधान बता रहा हूं, लेकिन संविधान आपकी निजी जिंदगी में कहां पे लागू है ये भी तो बता रहा हूं। इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति, घुमंतु जाति जनजाति के लोग, पिछड़े तबके के लोग, विशेष मागास वर्ग प्रवर्ग के लोग, जिनको इस देश में शिष्यवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, वो किसके वजह से मिलती है? उसका बाप कौन है? उसका प्रावधान किसने किया है? वो आर्टिकल कौन सा है? मालूम तो होना चाहिए आपको। वो आर्टिकल है आर्टिकल 46, जिसके तहत कहा गया है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस इज नेसेसरी। द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर the educational economic interests of the weaker sections of the people and in particular of the scheduled castes and scheduled tribes, and shall protect them from the social injustice and from the all exploitations. इंपॉर्टेंट है ना। हमारे महाराष्ट्र में बहुत अलग अलग सिनेरियो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते, ज्या दिवशी तुम्हाला शिष्यवृत्तीची रक्कम
तुमच्या खात्यामध्ये जमा होते, त्या दिवशी तुम्ही खूप आनंदात असतात. पण ही शिष्यवृत्तीची रक्कम कुणामुळे मिळाली? प्रश्न आहे की नाही? प्रश्न आहे ना. ही शिष्यवृत्तीची रक्कम बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे मिळालेली आहे तुम्हाला. आर्टिकल 46 मुळे मिळाली आहे तुम्हाला. मग तुम्ही अनुसूचित जातीचे असाल, अनुसूचित जनजातीचे असाल, तुम्ही इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचे असाल, भटक्या विमुक्त जाती जनजातीचे असेल, तुम्हाला शिष्यवृत्तीची रक्कम बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे मिळाली. आणि कुणामुळे नाही मिळाली मित्र? तुमच्या घरात आहे बाबासाहेबांचा फोटो? विद्यार्थी मला विचारतात. शिष्यवृत्ती घेतात, तुमच्या खिशात आहे, पाकिटात आहे, पर्समध्ये आहे बाबासाहेबांचा फोटो. किती वेळा वाचलाय संविधान? हा पण महत्वाचा मुद्दा आहे. असे प्रश्न विचारतात काही मुलं. त्यावेळेला मला प्रश्न निर्माण होतो की खरंच हे फार महत्वाचे प्रश्न आहेत. त्यांनाही कळलं पाहिजे की आपण लाभार्थी आहोत या शिष्यवृत्तीच्या योजनेचे बाबासाहेबांमुळे. आपण लाभार्थी आहोत एमफिल PhD ला ऍडमिशन मिळवण्यामुळे, आरक्षणाच्या धोरणामुळे, ते केवळ बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे. आकाशातून पडलेलं नाही, वरतून काही उतरलेलं नाही, धर्मशास्त्राने दिलेलं नाही, या देशाच्या संविधानाने दिले आणि संविधान लिहिणाऱ्या बापाने दिले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी. समजून घ्या. डोक्यामधलं जे खूळ आहे ते बाजूला काढा आणि काळ्या चष्म्याने बाबासाहेब आंबेडकरांना बघणं बंद करा. असं म्हटलं जातं, ते यासाठीच म्हटलं जातं कारण हे तुमचे अधिकार बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे मिळाले. ज्याला समजतं त्याला समजतं, ज्याला समजत नाही त्याला फक्त शिष्यवृत्तीच्या रकमा घेणं समजतं, असंही कधी कधी म्हटलं जातं उपरोधाने. त्याबद्दल मला काही भाष्य करायचं. पण हा महत्वाचा प्रश्न. लोक बाबासाहेब स्वीकारतात, त्यांच्या सोयी करतात. हा महत्वाचा प्रश्न आहे. लोक बाबासाहेब स्वीकारतात, त्यांच्या सोयी करता, शिष्यवृत्ती मिळवण्याकरता, नोकरी मिळवण्याकरता, आणि त्याच्यानंतर बाबासाहेब विचारतात ते त्यांच्या सोयी करतात. सोयीसाठी बाबासाहेबांना स्वीकारू नका. बाबासाहेबांना स्वीकारायचं असेल तर या देशामध्ये सामाजिक परिवर्तन आणण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वीकारा. सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज प्रबोधनाचा आपल्याकडे आहे, ते समजण्यासाठी बाबासाहेबांना स्वीकारा. तर खऱ्या अर्थाने तुम्हाला बाबासाहेब समजेल, अदरवाईज बाबासाहेब समजणार नाही. तिन्ही भाषांमधून बोलत आहे, मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी. कारण जागतिक स्तरावरती दुबई म्हणा, मस्कत म्हणा, अमेरिका म्हणा, तिथले लोक पाठवतात मेल, इंग्लिशमधून बोला. भारतातले नॉर्थ इंडिया, साऊथ इंडियातले लोक सांगतात हिंदीमधून बोला. महाराष्ट्रातले सांगतात मराठीतून बोला. अडचण असते, त्यामुळे मी तिन्ही भाषांमधून समन्वय करतो. एनिवेज, आर्टिकल 320 इज अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशंस. लोक सेवा आयोग का प्रावधान इस देश के संविधान में आया है आर्टिकल 320 की वजह से. अभी एमपीएससी का रिजल्ट लगा महाराष्ट्र में. आरक्षण के लाभार्थी पिछड़े तबके के लोग और अभी आरक्षण के नए लाभार्थी मराठा समाज के लोग, इनको भी इस आरक्षण की एम्बिट में आने की वजह से तलाटी होना पॉसिबल हुआ, डिप्टी कलेक्टर होना पॉसिबल हुआ. तो इसका उद्गाता कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर. लोक सेवा आयोग का उद्गाता कौन है? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर. The functions of the Public Service Commission, it shall be the duty of the Union and the State Public Service Commissions to conduct the examinations for the appointments, the services of the Union and the services of the State respectively. It shall be the duty of the Union Public Service Commission, if requested, 2 or more states to assist the state framing the operating the schemes, joint recruitment. ये recruitment का जब मसला आता है तो आरक्षण का मसला आता है. For any service for which candidate possessing the special qualifications are required, the Union Public Service Commissions or the State Public Service Commissions, in case maybe, shall be consulted. So we need to understand that the benefits of the reservations are extended to all those who are coming in the periphery of this reservation. They should understand that this is because of Dr. Ambedkar. बन गया प्रोफेसर, बन गया प्रिंसिपल, बन गया IAS अधिकारी, बन गया आप जिलाधिकारी, और किसके वजह से बने आप? ये लोक सेवा आयोग लाया किसने? आप प्रशासनिक स्तर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में IAS हुए किसकी वजह से? और इसका प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है. इसमें आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया. वरना एक दिन तो ऐसा था कि गांव के बाहर
जहां पे लोगों को जलाया जाता है, गाड़ा जाता है, वहां पे रहने की नौबत थी 3,500 सालों तक लोगों को। वो इस देश की राज्य व्यवस्था में, प्रशासन व्यवस्था में आज IAS अधिकार बन रहे, वापस अम्बेडकर। On the matters relating to the methods and recruitment of the civil services, so methods and recruitment of the civil services and civil post has been discussed. On the principles to be followed, the making the appointments of the civil services and the posts, in the making the promotions and the transfers from one service to another service, ये जो promotion होता है, promotion में आरक्षण जो मिलता है, ये मसला भी यहाँ पर discuss होता है। On the all disciplinary aspects of the affecting the a person serving under the government of India or other government of the state civil capacity, including memorial petitions related such matters, सब प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑलरेडी कर चुका है। मसला ये भी होता है कि लोग बोलते हैं कि 14 अप्रैल को हम लोग भीम जयंती नहीं मनाएंगे, लेकिन हम देवी देवताओं का घर पे उत्सव करेंगे, उनकी मूर्ति लाएंगे, उनको विसर्जित करेंगे। मसला ये भी होता है कि आपको आरक्षण की वजह से सेवा आयोजन में लाया गया है, और ये किसी ने नहीं दिया, ये बाबा साहब ने दिया। अगर ये बाबा साहब ने दिया है तो 14 अप्रैल को मत भूलिए दोस्तों, 6 दिसंबर को मत भूलिए। जो भूलते हैं उनके बारे में मैं नहीं कहूँगा कि वो क्या है, लेकिन सच तो ये भी है कि हमारे निवालों के ऊपर जो आरक्षण के लाभार्थी है, उस पर केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का हक है, ना किसी देवी देवता, ना किसी महापुरुष का, केवल बाबा साहब अम्बेडकर। इस मसले को आगे लेके हुए मैं आगे और दूसरे सवाल पर बात। Various articles are there. Article 330, I'll talk. Reservations of seats for the scheduled castes and scheduled tribes. अभी कुछ लोग बहुत सारे भ्रम निर्माण करते हैं, बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल और केवल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम किया, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए तो भाई कुछ काम ही नहीं किया। बुद्धि भेद करना, बुद्धि भ्रम करना बहुत आसान होता है। गोबेल्स की जो नीति है, एक बार झूठ बोलो लेकिन 1000 बार बोलो, लेकिन लोगों को 1000 बार झूठ को बोलने की वजह से लगता है कि यह सच है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। अगर हम सूरज को छुपाने की कोशिश करें तो सूरज छुप नहीं सकता, वैसे भी भारत का संविधान छुप नहीं सकता। जो आर्टिकल्स बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति के लिए लिखे, वो अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, और कुल मिलाकर तकरीबन 27 आर्टिकल भारत के संविधान में जो है अनुसूचित जाति जनजाति को लागू होते। इसलिए आदिवासियों ने, इस देश के शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने भी यह समझना जरूरी है कि उनका जो उद्धार करता है वो बाबा साहब अम्बेडकर और भारत का संविधान। सब भ्रम, सब बुद्धिभेद को भूलना चाहिए। Article 330 of the Constitution of India says that the reservation of the seats for the scheduled castes and scheduled tribes in the House of the People, the seats shall be reserved for both in the House of the People for the scheduled caste and scheduled tribes, autonomous districts of Assam। ये जो विधिमंडल में, विधानसभा में, राज्यसभा में, संसद में, लोकसभा में आरक्षण है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, वो किसके वजह से है? वो है आर्टिकल 330 की वजह से। और लिखा किसने है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये इंपॉर्टेंट बात समझना चाहिए। आर्टिकल 330 जो आया है उसका एक्सटेंशन है रिजर्वेशंस का, जो कि पैरामीटर्स एक्सटेंड करते जाते हैं। आर्टिकल 332 जिसे अनुच्छेद 332 कहते हैं, 332 कहते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव assemblies of the state, the seats shall be reserved for the scheduled caste and scheduled tribes in the legislative assembly of every state. लेजिस्लेटिव असेंबली में आरक्षित पद रखना अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए, यह प्रावधान आर्टिकल 332 की वजह से आया है। Article 332 of the Constitution of India, as per the Section 5 of the Representation of the People Act 1951, only the candidates belonging to the scheduled caste are eligible for contesting the election in the state constitution. Article 335 भी आता है। Claims of the scheduled caste, 335 I am talking. Claims of the scheduled caste and scheduled tribes to services and the post. The claims of the members of the scheduled caste and scheduled tribe shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointment into the service for the post of connection,
with affairs to the Union of the States. क्या है मतलब? रिक्रूटमेंट में आरक्षण भी दो, नियुक्ति में आरक्षण भी दो, और आरक्षण के देने के बाद में वहां पे पदोन्नति भी दो। यह अनुच्छेद 335 की वजह से आया हुआ। और एक अगला महत्वपूर्ण पड़ाव जो अनुच्छेदों के बाद में आता है वो है आर्टिकल 338। हजारों सालों से पूछने वाला कोई नहीं था, हजारों सालों से पूछने वाला कोई नहीं था, हम मर गए तो हमारे लिए रोने वाला कोई नहीं था। हजारों सालों से पूछने वाला कोई नहीं था, हम मर गए तो हमारे लिए रोने वाला कोई नहीं था। हम रहते थे गांवों से बस्तियों से बाहर, हम रहते थे गांवों से बस्तियों से बाहर, क्यों रहते हो आप बाहर, ये पूछने वाला भी कोई नहीं था। हजारों सालों से हमें पूछने वाला भी कोई नहीं था। ऐसी अवस्था में जीवन व्यतीत करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए अनुच्छेद 338 का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। 338 का प्रावधान इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो संवैधानिक आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो संवैधानिक आयोग है, वो किसकी देन है? बाबा साहब अम्बेडकर की। जब हम समाज सुधारना मूवमेंट की बात करते हैं भारत में, लोग बोलते हैं कि भारत के समाज सुधारना के जनक राजा राममोहन रॉय है। अगर राजा राममोहन रॉय भारत के समाज सुधारना व्यवस्था के जनक है, पूछा जाता है, लोग कहते हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने बंगाल के चांडालों के लिए व्यवस्था बदलने की काम की? क्यों वो केवल सती और बहुपत्नीकत्व की व्यवस्था तक सीमित रहे? क्यों ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के इश्यू तक सीमित रहे? सवाल है। क्यों स्वामी दयानंद सरस्वती गो बैक टू वेदास तक सीमित रहे? क्या इनकी आंखों को दिखाई नहीं देता था कि इस देश में ऐसे भी लोग रहते हैं जो गले में हंडी डालते हैं, थूकना भी होगा तो उनको उस हंडी में थूकना पड़ता था, थूकना भी होता था उस हंडी में थूकना पड़ता था, आंसू भी आते तो उस हंडी में डालने पड़ते थे, पसीना भी आता था उस हंडी में डालना पड़ता था, क्योंकि उनका पसीना, उनकी थूक, उनके आंसू अगर जमीन पर पड़ जाए तो जमीन मैली हो जाती है। ये धर्मशास्त्र का मानना था। क्या राजा राममोहन रॉय को, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती को ये मालूम नहीं था? मालूम था। मालूम होना बात अलग है और उस एहसास के साथ जीना अलग बात है। जिस एहसास को बाबा साहब अम्बेडकर ने जिंदगी भर झेला, जिस एहसास को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा, उस एहसास को बाबा साहब अम्बेडकर के भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में डाला है। रूस के संविधान में, अमेरिका के संविधान में, स्विट्जरलैंड के संविधान में, कोई भी संविधान में आर्टिकल 338 का प्रावधान नहीं है, जो केवल इस संविधान में। ये इंपॉर्टेंट बात है। So the National Commission of the Scheduled Caste is there. So 3(1) shall be Article 338. 3(1) shall be there for the Commission for the Scheduled Caste to be known as the National Commission for the Scheduled Caste, subject to the provision of the law made in this behalf of the Parliament, and the Commission shall be consist of the chairperson, vice chairperson, and other 3 members, and the conditions of the services and the tenure of the official chairpersons will be discussed, and President will be above them. या अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जो अन्याय होता है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का संवैधानिक तौर पर अधिकार किसको दिया है? जिसे क्वासी जुडिशियल पावर कहते हैं, समन्यायिक व्यवस्था का अधिकार कहते हैं, वो केवल अधिकार 338 की वजह से आया। महाराष्ट्र में 13 लोगों की हत्या हुई है। 13 लोगों की हत्या, 13 लोगों के ऊपर अत्याचार हुए जो अनुसूचित जाति के, जिसमें एक पारधी समाज का, एक मातंग समाज का और 11 लोग बौद्ध समाज के हैं, जिसे हम महार कहते हैं। ये 3-4 महीनों में सवाल ये भी आता है, लोग पूछते भी हैं हमें कि क्या भाई इन 13 केसेस में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक भी सदस्य अध्यक्ष महाराष्ट्र में आया, उसने इंक्वायरी की, जबकि उसे असंवैधानिक अधिकार है? नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर इंक्वायरी की जाती है, 10 घंटे रिया चक्रवर्ती की इंक्वायरी की जाती है, लेकिन अरविंद बंसोड़ की
मृत्यु के संदर्भ में कोई इंक्वायरी करता है? विराट जगताप को 8 लोगों ने मारा गया, क्रूर निर्मम हत्या की गई। क्या एक भी राष्ट्रीय सेवा अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य यहां पर आके इंक्वायरी करता है? इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन संविधान को अस्तित्व में लाने वाले लोग अगर सही नहीं रहेंगे तो इस संविधान बेईमानी होता है। ये जो बात होती है वो इस आज के परिप्रेक्ष्य में ये 13 लोगों के जो अत्याचार होते हैं, किसका खून होता है, किसी के हाथ छाटे जाते हैं, किसी का घर जलाया गया 3 महीनों के लॉकडाउन के कालखंड में, ये सही मायने में हमें समझना चाहिए कि आर्टिकल 338 का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। 3000 पन्नों का रिपोर्ट मैंने केंद्र सरकार को, एचआरडी मिनिस्ट्री को सबमिट किया, सामाजिक न्याय मंत्री को सबमिट किया, इस देश के गृह सचिव को, गृह मंत्री को सबमिट किया। अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जो अत्याचार होते हैं महाराष्ट्र में, 3000 पन्नों का सबसे बड़ा काम बाबा साहब अम्बेडकर के इस अत्याचार के संदर्भ में मैंने आज तक किया, जो आज तक भारत में किसी ने नहीं किया। 1700 से अधिक केसेस का मैंने अवलोकन किया और फिर पता चला कि आयोग तो है, लेकिन आयोग पे काम करने वाले लोग अगर सही मायने में काम नहीं करें तो बाबा साहब अम्बेडकर कितना भी क्यों न चाहे और कितना भी क्यों न आर्टिकल 338 में लिखे, अत्याचार तो 768 वुमेन्स वर रेप्ड इन द 3 years tenure 2012 to 2015 in Maharashtra belonging to the scheduled caste and scheduled tribe. In how many cases, in how many rape cases of 768 cases, how much was the intervention of the National Commission of the Scheduled Caste and the State Commission of the Scheduled Caste and the Protection of Civil Rights Department? There is a special IG, Special Inspector General of Police for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe. What is he doing on the 13 atrocity cases in the Maharashtra in the last 3 months is a matter of question to be answered. Understood that the constitution is there, constitutional provisions are there, but the constitutional morality is not there. That is where the questions of atrocities arise. So the National Commission of Scheduled Caste is there, but the constitutional morality of redressing the grievances should be there in the members of the committee. This is a general observation of other people's, not my observations. But this is matter. It has a right to inquire the specific complaints in respect of the deprivation of the rights and safeguards of the scheduled caste, to participate and advise in the planning process of the socio-economic development, to present the president annually. भारत के राष्ट्रपति को इनका अहवाल सबमिट करना पड़ता है भाई, संसद में इसका अहवाल डिस्कस होता है. To make such reports and recommendations, measures should be taken. क्या करना चाहिए? विशिष्ट न्यायालय का प्रावधान है. कितने विशिष्ट न्यायालय, विशेष सरकारी अभियोक्ता देने का प्रावधान है, विशेष पुलिस थाना निर्माण करने का प्रावधान कितने जगह पे है. ये राज्य स्तरीय दक्षता समिति का प्रावधान है, नोडल अधिकारी का प्रावधान है. कितने लोग कर रहे हैं ये? मरे जा रहे हैं लोग कुत्तों की तरह. उनका मांस निचोड़ा जा रहा है केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं. इसलिए यह जातीय मानसिकता जब तक नहीं जाएगी तब तक छुआछूत नहीं जाएगी. समझ में आना काफी जरूरी. यहां तक कि यह अनुसूचित जाति आयोग जो राष्ट्रीय स्तर पर है, संविधान ने अधिकार दिया है उसे. क्या अधिकार है? रिसीविंग द एविडेंस एंड एफिडेविट्स, requestioning any public record or copy thereof from any court or office, issuing the commissions from the examination of the witnesses and documents, issuing the summons also. कितने समन्स इश्यू हुए भाई? अभी 13 लोगों के ऊपर अत्याचार हुए महाराष्ट्र में. निर्मम हत्या भी अरविंद जगताप की, विराट जगताप की. अरविंद मनसोड़ मारा गया, मर गया, जो कुछ भी हो. कितने जगह पे हुए समन्स? सवाल है ना. Article 338 provides the statutory commissions, that is National Commission of Scheduled Caste and National Commission of the Scheduled Tribe. The Scheduled Caste Sub-Plan 1979 is mandatory process whereby the money cannot be transferred, cannot be lapsed, and it should be carried forward. That was a demand that we made to the government. It's not happening so. In that cases, the National Commission of Scheduled Caste and Scheduled Tribe can intervene. It's an important matter. I would like to submit over here that
These all the articles that are given the Constitution of India are for the empowerment of the scheduled caste and scheduled tribe. I have only touched scheduled caste and scheduled tribe, specifically scheduled caste today. But there are other aspects: disabled persons, women's, laborers, minorities, other backward caste. That I will be having a separate lectures and constitutional articles and the case laws and the acts thereof. As far as the scheduled tribes are concerned, Article 15.4 is there. I am just quoting the articles because there was a time constraint. I am speaking too much. And it's Article 16.4 is there. Article 16.4a is there. Article 23 is there. Article 24 is there. Article 29.1 is there. Separate lecture on the scheduled tribe and the constitutional provision will be taken by me. Article 46 is there. Article 64.1 is there, which is only for the scheduled tribe. Article 243d is there. Reservations of the seats are there. And then we go ahead. These are the amendments in due course of time. Article 244 is there. Administration of the scheduled areas of the tribal areas. Then Article 275 is there. Article 275. Then Article 320 is there. Functions of the Public Service Commissions, that is also there. Then we have got other articles that are there in the Constitution of India. Article 330 is there. Then we have the other articles that are important articles. I'll just show you the screen right now so that you can understand that. This is a huge work that I'm doing for understanding these concepts. Article 330 is there. And then we have got Article 332, about which I have spoke. Article 334 is there. Again we have got Article 335 is there. Article 330 that I already spoken right now here. Then we have got some other articles for the scheduled tribes. Is 342 is specifically for the scheduled tribes that we need to understand. 350A is there for the scheduled tribe. 371A is there for the scheduled tribe. So these are the various articles about which I will be talking later on. We see the Nagaland and all these tribal states, they are getting these benefits because of the Constitution of India. That we need to understand in due course of time. Article 170 is there, Legislative Assembly of the Nagaland, and other things are there. Article 371A is there, Article 371B is there, Article 371C is there, and then 5th schedule is there, that is under the Article 244(1) of the Constitution of India, which came in due course of time. And then in that Part C is talking about the schedule areas. Okay, Part D is about the amendment of the Schedule 7. Then we have got Part B about the administration and the control of the scheduled areas of the scheduled tribe. जो पिछड़े अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, वो सब प्रावधान, सबसे ज्यादा प्रावधान तो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भारत के संविधान में। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझना जरूरी है। अगर आपको स्क्रीन दिख रही होगी तो आप समझ पाओगे कि कितना काम किया है संविधान में और कितना काम मैं कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। पार्ट सी ऑफ द दिस शेड्यूल 4 इज फॉर द शेड्यूल एरियाज। ओके, so this all is there for scheduled tribes. Amendment of the schedule is there in Part D. The Constitution of India 6 schedule 242(4)(2) and 275(1). ये केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लोगों के लिए, मैं यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब किसके वजह से आया? ये प्रावधान क्यों हो पाया? इतने सब आर्टिकल्स क्यों आ पाए? हाँ, ये फॉरेस्ट के संदर्भ में उनके राइट्स किसकी वजह से आए? वो एक्ट किसके वजह से आया? रिजर्व फॉरेस्ट की कंसेप्ट कहाँ से आई? द आसाम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1891 कहाँ से आया? ये कहाँ से सक्षमीकरण हुआ? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ये सब बातें थी। और बाद में इनको ये सब राइट्स कहाँ से मिले? ये सब राइट्स, ये पावर्स कहाँ से आए? तो ये शेड्यूल्स की वजह से आए। इतना सब कुछ केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भारत के संविधान में है, जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी नहीं है। ये समझना जरूरी है। पार्ट 3 ये चकमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, मारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ये लाई डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ये मिजो डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के बारे में, ये सब जो है ये 20B ये कहाँ से आया? ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर primarily absolutely important. I would like to conclude over here by saying that the scheduled caste and scheduled tribe peoples in India
are the beneficiaries of the reservations, are the beneficiaries of the Constitution of India and the fundamental rights, are the beneficiaries of the Part 4 of the Constitution of India, that is directive principle of the state policy, are the beneficiary of the judiciary policy framed by Dr. Ambedkar, are the beneficiary of the reservation policy framed by Dr. Ambedkar, and therefore the entire empowerment at the constitutional level is done because of Dr. Babasaheb Ambedkar. Because he was the chairman of the drafting committee of India, and out of the 7 members, 6 members were inactive due to the various reasons as explained by T.T. Krishnamachari. Therefore, I would like to safely say and conclude over here that the real empowerment of the scheduled caste and the scheduled tribes in India and the various depressed classes in the Constitution of India is just because of Dr. Babasaheb Ambedkar. With this word, I conclude by saying that equality, liberty, fraternity and social justice came into existence through the articles in the fundamental rights, Part 4 of the Constitution of India, that is directive principle of the state policy, judiciary and reservation policy, and it's all because of Dr. Babasaheb Ambedkar. Thank you very much for listening patiently. Thank you.